Good morning, students. Myself Rajiv Verma is going to continue chapter number 4 of physics. In previous lecture, I have covered up to the magnetic field due to the current carrying loop at its center and on its axis. So, do you know the formula of the magnetic field at its axis at a distance r? Write the formula. Okay, now you can check this formula from your notes whether it is correct or not. Today I want to discuss first of all the direction of the magnetic field. Direction of magnetic field can be calculated by a right hand thumb rule, and the second one is the clock rule. In this diagram I am going to discuss about this one. Suppose we have a current carrying loop and I be the current flowing through this loop, then these concentric rings are indicating the direction of the magnetic field. यानी हम ये कह सकते हैं कि if we hold our right hand in such a way that the curl of the fingers gives the direction of the flowing current, then extended thumb will give the direction of the magnetic field, जैसा कि इसमें दिखाया गया है. ठीक है, यानी अगर मैं इस लूप की बात करता हूं तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड if we fold our finger, curl our finger in this way, then thumb is giving the direction of the magnetic field. Okay, now coming to the second one, clock rule. If we consider or imagine a loop in which the current is flowing in anti-clockwise the direction, means the face which is towards us, means we are observing that face and the current is flowing in the clockwise direction, then that face will behave as north pole. Now if the current in the front face is in the clockwise direction, then this face of the loop behaves as south pole. तो दिस इज नोन एज द क्लॉक रूल, यानी कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो फ्रंट फेस होगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा. इफ करंट इज इन द क्लॉकवाइज तो जो फ्रंट फेस होगा दैट विल बिहेव एज द साउथ पोल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ. व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ? एम्पियर सर्कुलर लॉ states that the total magnetic field induction over a closed loop is mu naught times the total current threading or passing the surface. यानी मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मैथमेटिकली, इंटीग्रल BDL is equal to mu naught I, where I be the current flowing through the loop or passing through the loop. यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम द करंट थ्रेडिंग और पासिंग द लूप. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ. अगर हम ये कंसीडर करते हैं, सपोज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड कैरिंग करंट है. एक वायर को हमने कंसीडर करा जो इनफाइनाइट लेंथ की है और जो आई करंट को कैरी करती है. तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल अगर बात करूं तो द मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट around the wire. Okay, suppose this is a circle of radius r. Here we are considering a small element of length dl, and tangent at any point will give the direction of the magnetic field, and here by the thumb rule the direction of the magnetic field is in anti-clockwise direction. Okay, so in this case if we want to calculate the magnetic field, तो इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू हो जाएगा BDL cos 0. BDL cos 0 because the angle between DL and B is 0, so cos 0, and we know the value of the cos 0 is 1, so it will be B integral DL, and the value of DL is the circumference of the loop. This is 2 pi r, B into 2 pi r. तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप. सही है. सिमिलरली अगर हम इसमें
एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें तो इंटीग्रल बी डी एल में ऑल्सो बी रिटेन एज म्यू नॉट इंटू आई, where I is the current, I is the current flowing through the wire and मतलब threading the surface, और mu naught is known as the permeability of the free space. इसका मतलब ये हुआ we have calculated the magnetic field induction in two ways. First of all, by the definition of the vector means directly, and the second by the Ampere's law. From equation number 1 and 2 we can compare them. This is b into 2 pi r is equal to mu naught I. ठीक है, b can be calculated as mu naught I upon 2 pi r. So this is the final expression for the magnetic field due to this law according to Ampere's law. In case of the conductor of the finite length, अगर हम इसे finite length consider करें तो current carrying conductor of finite length is not practically possible, because if we consider this is of the finite length, then we should connect its two terminals with the connecting wires. They are also the conductors to pass the current through this one, means to make the circuit close. Then that conductor will also affect the magnetic field. So conductor of finite length in this case cannot be पॉसिबल. ओके, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करते हैं तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. अब अभी राइट हैंड थंब रूल हमने किया है. नाउ अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड थंब रूल. नाउ इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, these are the magnetic field line, this is the current flowing through the loop. Means if we hold a conductor in our right hand in such a way that thumb indicate the direction of flowing current, यानी करंट नीचे बॉटम से टॉप की तरफ अगर जा रहा हो, thumb is indicating the direction of flowing current, then curved finger will give the direction of magnetic field. जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, ये जो है इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और करंट नीचे से ऊपर की तरफ इसके अंदर जा रहा है. तो ये हो गया हमारा टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप. इसमें एक और रूल आता है स्क्रू रूल. अगर हम स्क्रू की बात करते हैं, सपोज दिस इज अ स्क्रू, we are considering a right handed screw and it moves in the direction of the current, along the direction of the current. यानी अगर हम एक राइट हैंडेड स्क्रू को कंसीडर करें जो करंट की डायरेक्शन में चल रहा हो, तो if the screw is moving in the direction of the current, then the direction in which the screw rotate to advance in this direction will give the direction of the magnetic field. इस जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा, हमने क्या किया कंसीडर कि सपोज द स्क्रू इज एडवांसिंग, यानी आगे बढ़ रहा है, कहां पर, along the direction of current. तो उस स्क्रू को आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, रोटेट होना पड़ेगा. तो द डायरेक्शन इन विच इट रोटेट्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड. सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड मींस इफ वी आर हैविंग a base material, suppose insulating core, and we are wounding it with the help of the insulated copper wire, then it will behave as a solenoid. So we are considering a solenoid here. Okay, and suppose the magnetic field is existing in the solenoid uniform inside it and it is having zero value outside it. Magnetic field is zero outside the solenoid. Suppose the current is entering in the solenoid through this point and ejecting from the top, bottom to top. Now
To find the magnetic field inside it, consider a current carrying loop ABCD of length L. Now, the magnetic field integral BdL for the loop, it may also be written as ABCD BdL, can be calculated as integral A to B BdL plus integral B to C BdL. ठीक है. Here also we are considering the direction of the current is the direction of the magnetic field. Similarly, integral C to D BdL plus integral D to A BdL. Now we are solving one by one. Integral A to B BdL may be written as BdL cos theta, and theta is 0 in this case, क्योंकि जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एग्जिस्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस इज इक्वल टू B इंटीग्रल A to B dl, और जो dl है वो हमने कंसिडर कर रखी है ln, तो ये हो गया bl, ये हो गया फर्स्ट केस. सिमिलरली वी आर सॉल्विंग B to C BdL, it is equal to B dl cos 90 degrees and is equal to 0. Similarly, integral C to D BdL is also 0 because here magnetic field is 0. This is 0 because of its magnetic field. Magnetic field is 0 here. Okay. Now, at last, D to A BdL is equal to BdL cos 90, and this is 0 because of the value of the cos 90. So we have calculated the values of these four, and we got the value BL for this one. Now we can write this as B into L. Okay. Similarly, this BdL may be calculated by Ampere's law, which is equal to mu naught multiplied by the current passing through the loop. ओके, तो करंट पासिंग थ्रू द लूप में क्या कंसीडर करें? सपोज n be the number of turns per unit length of solenoid. n तो नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ में है, तो l लेंथ में कितने टर्न होंगे? देयरफॉर टोटल टर्न्स हो जाएंगे NL. ओके. और अगर एक टर्न से फ्लो होने वाला करंट I हो, तो देयरफॉर जो टोटल करंट होगा फ्लोइंग इज इक्वल टू NLI. राइट. यानी कि हमने BdL की वैल्यू को दो तरीके से कैलकुलेट करा. पहला वाला मेथड क्या था? A से B, B से C, C से D, D से. सेकेंड मेथड क्या था? एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए म्यू नॉट इन द करंट थ्रेडिंग द सरफेस, और करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने मान लिया यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न एग्जिस्ट करते हैं, तो L लेंथ में कितने एग्जिस्ट करेंगे? यूनिट लेंथ में n, तो L लेंथ में NL. अब एक में फ्लो होने वाला करंट I है, तो इतने सारे NL टर्न्स में फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा? NLI. तो अब हम ये वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तो हम एम्पियर्स लॉ से BdL की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं. इट इज म्यू नॉट NLI. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके.
अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें, कंपेयर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बीडीएल हमने कैलकुलेट करा, एक बाय द डायरेक्ट मेथड, एक बाय एम्पियर्स लॉ। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से जो BL होगा, BL दिस इज BL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन BL म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा, L से L कैंसिल, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, जो कि यूनिफॉर्मली इनसाइड इट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम एंड पॉइंट्स की बात करें, एंड पॉइंट्स, अगर हम एंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी जस्ट हाफ टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उससे हाफ हो जाएगा एट द एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो हुआ सोलिनॉइड का केस। अब हम सेकंड जो है, इससे आगे हम टोरॉइड भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नाउ एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कंसीडर करा, एक सोलिनॉइड कंसीडर करा। सोलिनॉइड कैसा है, एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के ऊपर वायर की वाइंडिंग की गई है। इस तरह की शेप होती है सोलिनॉइड की। अब हमने क्या कंसीडर करा है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड जीरो है। तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें एक करंट लूप कंसीडर करा, ABCD। अब इसमें करंट लूप में सपोज आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन, सो आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। ठीक है, तो एक क्लोज लूप हमने कंसीडर कर लिया ABCD। ओके, अब इसके कोरोस्पोंडिंग, इस लूप के कोरोस्पोंडिंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड BDL। तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, A से B तक का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, B से C, C से D, D से A तक का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जब हम BDL को सोल्व करते हैं तो BDL cos थीटा आता है। अब जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैंने एरो से इंडिकेट कर रखा है, एंड द करंट लूप, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो A से B तक का रीजन में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0। अगर हम BC और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 90, इसकी बात करें तो भी 90, और यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो इसलिए इन तीन रीजन का जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो तो हो गया 0, बस एक ही रीजन का बचा, BL। अब हमने यही फार्मूला दोबारा अप्लाई करा बाय एम्पियर्स लॉ, यानी कि BDL। तो म्यू नॉट एंड द करंट पासिंग थ्रू द लूप, ये फार्मूला है। तो n हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है सोलिनॉइड के, तो टोटल टर्न कितने हो गए, NL हो गए। n यूनिट लेंथ में टर्न है, L लेंथ टोटल हो गई। तो टोटल करंट कितना हुआ, एक टर्न में फ्लो होने वाला करंट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एक टर्न में फ्लो होने वाला करंट अगर आई हो तो टोटल में कितना होगा, NLI। अब ये करंट की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एम्पियर्स लॉ में, तो BDL आ गया म्यू नॉट NLI। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखो तो BDL ही हमने ऑब्टेन किया है। वी कैन कंपेयर द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कंपेयर करा, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, तो B की वैल्यू म्यू नॉट NI आ गई। और एक्सपेरिमेंटली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ होता है, इट इज हाफ म्यू नॉट NI। Okay, now coming to the next one. Next one is the magnetic expression for the magnetic field due to a toroid। टोरॉइड का दूसरा नेम होता है टोरॉइडल सोलिनॉइड, टोरॉइड या टोरॉइडल सोलिनॉइड भी इसको बोलते हैं। टोरॉइड क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलिनॉइड, एंडलेस सोलिनॉइड है। यानी अगर हम ये कंसीडर करें कि ये एक बेस
और इसके ऊपर अगर हम वायर की वाइंडिंग कर देते हैं तो दिस इज नोन एज अ टोरॉइड। अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर दें तो इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का इसके कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 रीजंस कंसीडर करे। एक रीजन ओपन स्पेस इनसाइड इट, ओ हमने मान लिया सेंटर है। ये R1 इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली, ई पॉइंट मान लिया। ये पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन हमने माना इन द इंटीरियर ऑफ द टोरॉइडल सोलिनॉइड, यानी टोरॉइड के अंदर वाला रीजन जिसकी रेडियस हमने कंसीडर करी R। थर्ड जो हमने रीजन माना आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड जिसकी रेडियस हमने कितनी कंसीडर करी R2। अब इन तीनों रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट रीजन में, इसे मैंने P मान रखा है, इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूँ, इसे S मान लेता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं एट P की बात करते हैं, यानी इंटीरियर पे आते हैं, इंटीरियर ओपन स्पेस पर आते हैं। तो इंटीग्रल BDL में भी रिटन एज BDL cos थीटा, इंटीग्रल BDL cos थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इट इज ओके ऑल्सो इट मे बी रिटन एज, जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 0, इट विल बी B इंटीग्रल DL n इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई R1। ऑल्सो जब हम मैग्नेटिक फील्ड बाय द एम्पियर्स लॉ कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, और एज नो करंट इज फ्लोइंग इनसाइड इट, आई क्या है 0। अगर आई 0 है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी 0 विद द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इसी तरह से अब मैं लास्ट वाला पोर्शन लेता हूं, थर्ड पॉइंट, यानी एट S वाला रीजन लेता हूं। इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई R2 इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रल BDL by the Ampere's law is equal to 0 as no current is flowing outside it also। सही है, तो अब जब इन्हें कंपेयर करेंगे तो अगेन वी गॉट 0। तो दो रीजन में तो हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, आउटसाइड और इन द इंटीरियर। रीजन क्या दिया उसका हमने कि इनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो करंट कहां फ्लो हो रहा है, करंट तो इस लूप में फ्लो हो रहा है। ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये इसकी सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। इनसाइड ओपन स्पेस है, आउटसाइड ओपन स्पेस है, वहां पर कोई वायर ही नहीं है, वहां पे कोई करंट ही नहीं है। तो करंट नहीं होने की वजह से एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग वो 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड दो रीजन में तो हमने 0 प्रूव कर दिया, ये हो गया। अब आते हैं हम लास्ट रीजन पर, इन द इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी हम बात कर रहे हैं एट क्यू रीजन की बात कर रहे हैं। सही है, हमने P और S रीजन ले लिया। अब Q पे आते हैं, Q पे आते हैं तो इंटीग्रल BDL इसके इक्वल हो जाएगा, ये BDL D इंटीग्रल DL की हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई R। सिमिलरली जब एम्पियर्स लॉ लगाता हूं तो BDL इज इक्वल टू म्यू नोट एंड द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। सही, अब करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड। तो टोरॉइड की पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर। 2 पाई आर में कितने टर्न एग्जिस्ट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हो जाएंगे NL या N इंटू 2 पाई आर। तो टोटल करंट कितना होगा N इंटू 2 पाई आर इंटू आई। अब हमने फिर से वही काम करा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिए, करंट की वैल्यू यहाँ रखकर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हमने एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट कर दिया। दिस इज म्यू नॉट इंटू N, म्यू नॉट इंटू N इंटू 2 पाई आर इंटू आई। ये आ गया भाई, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, कंपेयर करेंगे तो B
into 2 pi r is equal to mu naught n into 2 pi r into I. 2 pi r से 2 pi r cancel, magnetic field is mu naught n. So this is the magnitude of the magnetic field due to the toroid, which is same as in case of the solenoid. यानी यहाँ पर हमने इनकी रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा, एक बाय द डायरेक्ट मेथड, एक हमने कैलकुलेट करा बाय एम्पियर्स लॉ, और उसे कंपेयर करते हुए हम सबको ले आए। तो इस रीजन में और आउटर रीजन का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। कोज ये था कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और सिर्फ इस रीजन में क्योंकि यहाँ पर आई करंट हमने मान रखा है फ्लो हो रहा है, तो हमने फिर आई मान रखा है, नंबर ऑफ टर्न भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो मान लिया कि एन यूनिट लेंथ के टर्न है, तो टोटल टर्न एनएल हो गए। करंट कितना हो गया एनएलआई, ये करंट यहाँ पर हमने लिख दिया। तो वी गॉट दिस रिलेशन। नाउ वी हैव कंपेयर्ड दीज टू एंड गॉट दिस।